हाय गाइस एंड वेलकम टू एन ऑल न्यू वीडियो। यूजुअली आप लोग हमें देखते हैं हमारी बैकयार्ड में, बट आज हम लोग हैं फ्रंट यार्ड में बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ अ रेनोवेशन, नॉट अ रेनोवेशन टेक्निकली, जस्ट फ्यू माइनर ट्वीक्स टू मेक इट लुक मोर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। क्योंकि अभी ये जगह बिल्कुल खाली है। इनफैक्ट इट्स रियली डर्टी ऑल्सो राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रैंडम चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे ना फुल डे ऑफ सन आता है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लावर्स और कोई भी ऐसे प्लांट्स बहुत अच्छा करेंगे जिन्हें पूरी ब्राइट सनलाइट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि दिस प्लांट राइट हियर विच इज़ माई एल्मेंडा वाइन। इसमें ना एक्चुअली येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बड भी है। एंड दिस प्लांट हैज बीन ग्रोइंग रियली फास्ट ओवर हियर, स्पेशली बिकॉज आई थिंक यहाँ पे सन मिलता है इस अच्छे से, तो इट्स जस्ट जनरली डूइंग प्रीटी गुड एंड आई जस्ट वांटेड टू डू इवन बेटर एंड आई वांटेड टू ग्रो ऑल अराउंड माई front yard, which is why I'm going to try and create a trellis for it today. I've already added this one CPVC pipe my favorite material ever, to give it some support till all the way the ceiling. And अब हम लोग use करने वाले हैं इस trellis building material को, and we'll try and give direction to our plant. First start off by building a trellis from the pot till the top, ताकि ये अच्छा सा घना सा हो जाए। ये सही लग रहा है सीधा? एक्चुअली अ PVC mesh, और इस mesh को यूज़ कर सकते हैं आप गार्डन फेंसिंग के लिए. यू कैन यूज़ इट फॉर ग्रोइंग सम क्लाइंबर ऑन इट. And in our case, we are going to be using it as a trellis, which is basically means a support system for plants which are of this kind, जो hanging plants होते हैं. So the first thing I'm going to do is cut this mesh into a shape so that we can cover the whole pole that we've used, the CPVC pipe that we've used for giving height to our almenda plant. तो एक बार उसके लिए कवर करने के लिए हम लोग रफली इसे थोड़ा इधर तक से काटेंगे और सीधा सीधा कट करेंगे, सो दैट वी कैन कवर द पोल फर्स्ट. देखो इसका सर्कमफ्रेंस इतना होगा. शुड आई गिव इट वन मोर राउंड? थोड़ा सा बड़ा राउंड इतना ठीक है. स्टेप 1 डन. बेसिकली मैंने ये जो PVC मटेरियल है इसको पोल के आसपास भी इसलिए लगाया है सो दैट when this plant eventually grows big and bushy, it will take the shape of this trellis, like it will grow around it and it will take this shape. So that means our plant is going to look nice and cylindrical at the bottom, so it will look beautiful because these kind of plants, they take the shape of whatever it is that they're climbing. Okay guys, so now I'm going to start by cutting a horizontal trellis जो हम लोग इस पूरी लेंथ पे लगाएंगे. जितनी भी however much length is available to us right now उसको यूज़ करके. I don't think this will cover the entire length, but अभी हमारा प्लांट वैसे भी थोड़ा सा छोटा है, उसे ग्रो होने में टाइम लगेगा. So we'll start on that corner and जहाँ तक हमारी लेंथ आ जाएगी उतनी हम लोग कट करके लगा देंगे. And later if I get another almenda or if I multiply it using the cutting from this plant, I'll have another one which is growing from this side and it will basically make like a full on एक ऐसे shape सी बना देगा which will look quite pretty eventually. So we'll start off by cutting a horizontal trellis for that purpose. So I am roughly keeping about 6 inches of trellis width. Roughly मतलब obviously it's not a very correct estimate. देखते हैं कि कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है. I'll just start off by cutting this side. और ये तो बहुत लंबा काटना है, तो I'm feeling a little hassled already कि ये तो बहुत लंबा लगेगा. Let's hope we can make this happen as soon as possible before the sunset. Also I must point out right now in the month of June इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है. It's very difficult sitting outside and actually working, but you gotta do what you gotta do. If you have a certain hobby / passion, I'm sure many of you are into like working out or dancing or doing things which are exhausting, but you still do it whether or not it's summer or whether or not it's hot. I'm getting a little better at doing this. Okay. Oh, this is very hard work. Oh, okay. Hi.
हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। आज हम लोग लगाने वाले हैं एक केले का पौधा बिकॉज आई हैव दिस रियली बिग गमला ऑफ मिरर एंड आई हैव अ केला विच इज़ ऑब्वियसली टू पका हुआ मतलब बहुत ही ज़्यादा राइप हो गया है एंड इट्स नॉट एडिबल एनी मोर, सो आई थॉट आई जस्ट यूज द सीड्स इनसाइड द केला टू ट्राई एंड प्लांट अ बनाना ट्री। मिट्टी इज लुकिंग डिफरेंट। मैं एक्चुअली कोई और ब्रांड की मिट्टी ट्राई कर रही हूँ। ओके, इस पॉट के नीचे मैंने एज यूजुअल एक ड्रेनिंग होल को थोड़ा सा कवर करने के लिए लगा दिया है एक मिट्टी का पीस। आई जस्ट वो हमारा केला उग जाए क्योंकि कुछ ज़्यादा ही राइप लग रहा है मुझे। वो तुम्हें क्या लगता है, उगेगा कि नहीं उगेगा? उग जाएगा, पता नहीं, मुझे एक्सपीरियंस बी पॉजिटिव। यस। मतलब हमें तो सिर्फ ऑर्नामेंटल केले का पौधा चाहिए, नॉट नेसेसरीली फॉर बेयरिंग फ्रूट। ये मुझे 5 किलो पता नहीं क्यों नहीं लग रही मिट्टी। ओके, भाटर इज हियर, हैव नो फियर, वी विल स्टार्ट प्लांटिंग आवर बनाना। ओह गॉश, इस सड़ी हुई केले। ओश, ओह डिलीवरी इज हियर। थैंक यू भैया। एक छोटी सी माइनर सी इंटरप्शन हो गई, जो वायर हम लोग कल काट रहे थे उससे मेरे पैर में लग गई। कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं जल रहा है मुझे। ऐसे सूख खुले में ही छोड़ देंगे, छोटा सा ही कट है, हवा से सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेट मी गो एंड थ्रो दिस बायो हैजर्ड वेस्ट। तो हम लोग लेंगे एक गला हुआ केला जिसमें हम लोग मारेंगे गले हुए केले में एक कट। तो इस केले को अगर हम लोग हाफ में काटे ना, बहुत ही अच्छे स्मेल आ रहे हैं। स्मेल मुझे तो आया नहीं ना। ये देखो इतने सीड्स हैं इसके बीच में, ये सारे होते हैं केले के सीड्स। हम लोग इसे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, हल्की सी थिन सी लेयर। लेट्स पुट दिस इन। हाँ, यू राइट, अच्छी स्मेल तो आ रही है। लेट्स ऑल्सो पुट दी अदर साइड। इसको भी लगा देते हैं। बीज आ गए सारे के सारे। सो टू प्रिवेंट एनी insects getting attracted to it, we need to cover it properly, water the soil very very thoroughly ताकि एकदम गीली हो जाए आसपास। Now let's hope that in a few days we are going to see a केले का सैपलिंग। तो दोस्तों, जीवन में वायर काटो, दूसरों का मत काटो। कट से कैप्शन कट से ऋतिका सूर्यवंशी। ऋतिका, हाँ, डर नहीं लगता मुझे किसी से। ये वायर से तो खास तौर से नहीं लगता, चोट नहीं लगती मुझे इससे। दिख रहा है वो तो। टेटनस का इंजेक्शन अभी लगा था मुझे 2019 में। नहीं तो आपको फिर से लगाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि 6 महीने या 1 साल के लिए तो होता है शायद। हाँ, मैंने 1 साल वाला लिया था। चलो, 5 years वाला लिया था। क्या हुआ? गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? बीच से एक पार्ट छोटा कर दिया। मैं भूल गई थी मैं किस लाइन में काट रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 छोटा हो गया। बात करते करते ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें। 4 5 6, अरे गड़बड़ हो रही है फिर से। ओके, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कटा है। ये ज़्यादा कट गया है ऋतिका। अच्छा, नॉट बैड। कॉर्नर पे ना वो बैठा हुआ सा नहीं है, कोई अजीब लग रहा है। इन केस के लिए ले रही हूँ बस। कैसा लग रहा है ताने बाहर से? Now I feel like building a lot of vertical gardens. मतलब यहाँ पे सब्जियाँ ही सब्जियाँ उग रही है, लौकी उग रही है, करेला उग रहा है, मज़ा आ जाएगा। Now what I'm doing is, एक मेरे पास लैडर है और मेरे पास कुछ वर्टिकल ग्रिलिंग प्लांटर्स है। And one more fork can come at the bottom. So मैंने इस लैडर के ऊपर वर्टिकल रेलिंग प्लांटर्स लगाए हैं so that it makes for a nice vertical garden and I think it's already beginning to look pretty good. Obviously इसमें हमें मिट्टी ऐड करनी है और थोड़े से प्लांट्स ऐड करने हैं। मेरे पास अभी प्लांट्स की थोड़ी सी कमी है तो अगर मैं सिर्फ मिट्टी ऐड करके जो मेरे पास घर पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो थोड़ा सा लगाने की कोशिश करूँगी। So now we are just adding some soil to our vertical arrangement and I think this is so easy to make and to decorate any small space in your house. जैसे मेरी फ्रंट यार्ड थोड़ी सी small space है and if you have a balcony or a place a corner in which you want to add plants, you can just add a ladder and to that ladder add some railing planters and then add some nice plants to it. So now for adding plants, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे options नहीं है, I took some cuttings out of my spider plant which is growing in the backyard and these are actually aerial offshoots of the spider plant जिसमें से मैंने बस cuttings ली है and these grow very very easily. They develop roots within no time. So इसकी अगर आप cutting से भी start करें तो भी roots आ जाएंगी, जैसे कि over here I have a lot of cuttings over here without any roots and this one is a little rooted because इसकी cutting, इसकी जो offshoot थी वो थोड़ा सा कहीं और मिट्टी में लग के थोड़ी सी root इसकी develop हो चुकी है. So this one has still got a root. Rest of them do not have a root.
Check this out. Look at this cutting. This is actually a node point. Node point मतलब जहाँ से leaves निकलते हैं. So node points are actually active growth hormone points जहाँ से roots निकल आती हैं ऐसे plants की easily. इसलिए whenever you're taking cuttings, make sure that you take them at the very bottom of the leaves या फिर leave a little bit of a dandi so that roots can grow easily around. Adding enough water so that we can test कि पानी कहाँ drain होता है. See, it's dripping inside the next pot. ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन टुडेज वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस एल्विंडा प्लांट की कटिंग लेंगे टू ग्रो इट और टू मेक इट रूट ऑन इट्स ओन सो दैट आई डोंट हैव टू गो टू अ नर्सरी एंड परचेज अनदर एल्विंडा प्लांट. दिस वन इज ग्रोइंग प्रीटी वेल बट आई वांट वन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेज ऑल्सो सो दैट वंस इट ग्रोज दोनों साइड से ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली इट विल कवर द होल एरिया ऑन द टॉप. इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी एक कटिंग लूँ. नाउ टू टेक इट्स कटिंग लेट मी गिव यू सम instructions that at least I know they work. So we'll start off with a soft branch first of all. You know, this one is a woody branch. We don't have to cut into the woody branch at all. We have to cut into a soft stem because that is the one which is growing aggressively right now. So I'm going to take some pruning shears. यहाँ से cut कर लेते हैं. And now that we have this cutting, we are going to remove the bottom leaves. सारे के सारे bottom leaves हम लोग इससे निकाल देंगे. Okay, the leaves are out. Let's put it in water and just wait for it to grow in the next 20 days or so. And I will update you in the next video on how the cutting is growing. And with this, I'll end the video right here. And see you next time in another video in which I update you not only on the backyard but also on the front yard कि हमारे plants कैसे कर रहे हैं. What all is growing. We also planted a banana tree today, so let's hope in the next 20 days maybe that will also start growing. And I hope you got inspired by this video. I will see you next time in another video or a vlog or a backyard / front yard update video. Alright guys, bye bye.